गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. सो इन दैट चैप्टर we have done numericals of some type of numericals on the basis of Newton law of motion, force, momentum. So let us try some more numericals. So question is that velocity time graph of a ball moving on the surface of a floor is shown in the figure. Find the force acting on the ball if mass of the ball is 50 gram. तो क्या दिया हुआ है हमें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है एक बॉल का जो कि फ्लोर पे मूव कर रही है, और हमें क्या निकालना है, उस बॉल पे कितना फोर्स लग रहा है अगर बॉल का मास 50 ग्राम है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1. First we will write given. पहले हम गिवन लिखेंगे. गिवन में क्या है, हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो इट इज वेलोसिटी. It is in meter per second and it is in second. So here it is 30 and it is 6. So this is the velocity time graph given to us in the statement. Statement में हमें क्या दिया हुआ है? Velocity time graph हमें दिया है, और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना ये ग्राफ किसका है? This velocity time graph is the graph for a moving ball on the floor, and you have to find the value or magnitude of the force acting on this ball if mass of the ball is 50 gram. So given क्या है? mass of ball, that is m. How much? 50 gram. It means 50 by 1000 kg. तो मतलब क्या हुआ? 0.05 kg. तो मास कितना है? 0.05 kg मास है बॉल का, और हमें क्या दिया हुआ है? वीटी ग्राफ दिया हुआ है. तो हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड द फोर्स. फोर्स हमें निकालना है. ठीक है. तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन क्या होगा? F इज इक्वल टू m इंटू ए. फोर्स क्या होता है? फोर्स हमारा होता है मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी. सो acceleration. Now this VT graph means velocity time graph, if it is given to us, and from velocity time graph we can find the value of acceleration. And we know that in the last chapter motion, in the chapter motion, we have studied about the graphical significance of VT graph. So in that we will obtain the slope of velocity time graph will tell us about the value of acceleration. If the slope is increasing, then value of acceleration will be positive. If slope is decreasing, then acceleration will be negative. That is called retardation. Means अगर आपका slope increasing होगा तो हमें क्या मिलेगा? acceleration मिलेगा. अगर slope decreasing होगा तो हमें क्या मिलेगा? retardation मिलेगा. So now here A will be equal to V minus U by T. So at t is equal to 0 second. 0 second पे वेलोसिटी कितनी है? U is equal to how much? 30 मीटर पर सेकेंड.
and at t is equal to 6 second, at t is equal to 6 second, final velocity is how much? 0 meter per second. So a will be equal to, a क्या आ जाएगा? a will be 0 minus 30 divided by 6. So a will be equal to minus 30 by 6 and a will be equal to minus 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट मीन्स एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? क्या आ गया? एक्सीलरेशन विल बी minus 5 मीटर per second square. So value of acceleration is minus 5 meter per second square, or we can say that retardation, this is your retardation. ये क्या आ गया ये हमारा? This is retardation. इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा retardation आ गया. हमें निकालना क्या? फोर्स. तो फोर्स क्या है? मास. मास इज 0.05 मल्टीप्लाइड बाय एक्शन की वैल्यू कितनी है? -5. सो इट विल बी -0.25 न्यूटन. तो क्या आ गया? तो ये क्या आ गया? फोर्स का वैल्यू क्या आ गया? 0.25 न्यूटन. एंड माइनस साइन इंडिकेट्स दैट दिस फोर्स is known as retarding force, or the direction of this force in which it is applied, it is opposite to the direction of the motion of the ball. It means जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा. इट मींस ही इज कॉल्ड ए फ्रिक्शनल फोर्स. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम. सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा a man throws a ball of mass 0.4 kg vertically upwards with a velocity of 10 meter per second. What will be its initial momentum and what would be this momentum at the highest point of the reach? क्या बोल रहा है? एक आदमी एक बॉल फेंकता है, इसका मास है 0.4 kg और कहाँ फेंकता है? ऊपर की तरफ. उसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है. इट मीन्स क्या दे रखा है? u दे रखा है और मास दे रखा है और मोमेंटम निकालना इनिशियल और उसके मोमेंटम में निकालना है जो कि फाइनल क्या होगा. ठीक है. तो मास कितना है? 0.4 kg और वेलोसिटी है. ठीक है. तो हमें क्या दिया हुआ है? मास ऑफ बॉल m कितना है? 0.4 kg. कितना है? 0.4 kg है. ठीक. and initial velocity of ball कितना है? ये u. कितना आएगा? ये दे रखा है कितना? इट इज हाउ मच? इट इज 10 मीटर पर सेकेंड. 10 मीटर पर सेकेंड. सो mass of the ball is 0.4 kg. Initial velocity of ball is 10 meter per second. ठीक है. So now उसने क्या पूछा है? हमें निकालना है इनिशियल मोमेंटम निकालना है. इनिशियल मोमेंटम हमें निकालना है और फाइनल मोमेंटम at highest point of reach. ठीक है. तो हमें क्या दिया है?
बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जिसका मास था 0.4 kg, मीन्स एक बॉल 0.4 kg की, वो उसको ऊपर फेंका गया की स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से। और वी नो दैट जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो जितना ऊपर वो जा सकती है, इट मीन्स एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रीच इट कैन रीच, उस पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इनिशियल मोमेंटम। सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल क्या होगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो मास क्या है, 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 10, इट मीन्स 4 kg मीटर पर सेकंड। तो ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया इनिशियल मोमेंटम। दिस इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल। और जब वो बॉल ऊपर पहुंच जाएगी, जितना वो पहुंच सकती है, उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वेलोसिटी जितना ऊपर वो जा सकती है, उस हाइट पर पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 होगी। इट मीन्स उसके बाद वो नीचे ही आएगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सो फाइनल तो क्या होगा, एट हाईएस्ट पॉइंट, at highest point v will be equal to 0। तो कोई भी चीज नीचे से फेंकी जाए और वो जितना ऊपर तक जा सकती है, वहां पर पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अब आगे और ऊपर नहीं जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रीच, जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर सकती है ऊपर तक, उतने डिस्टेंस पर पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो क्या उसने क्या पूछा है, फाइनल मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट, मींस उस पॉइंट पे पहले वेलोसिटी निकालेंगे फिर हम मोमेंटम निकालेंगे। तो एट हाईएस्ट पॉइंट v विल बी 0, सो मोमेंटम इज इक्वल टू m into v। सो मास इज 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0, so आंसर इज 0। आंसर इज 0। आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इट मीन्स मोमेंटम ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रीच विल बी 0 बिकॉज एट द हाईएस्ट पॉइंट द फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Come on to question number 3. Question number 3 है, which would require a greater force accelerating at 2 kg mass at 5 meter per second square और a 4 kg mass at 2 meter per second। लेकिन वो क्या पूछ रहा है कि किसका फोर्स ज्यादा होगा, एक 2 किलोग्राम का मास की बॉडी को अगर हम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करें उसका फोर्स ज्यादा होगा, या 4 किलोग्राम की बॉडी को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हम एक्सीलरेट करें उसका फोर्स ज्यादा होगा। तो सिंपल है, देखिए जब दोनों का मास अलग अलग होना, उस केस में हमें फोर्स निकालना ही पड़ेगा। दोनों का मास अलग अलग हो उस केस में फोर्स निकालना ही पड़ेगा। इट मींस उस केस में हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। तो हम क्या करेंगे, दोनों केस में फोर्स निकालेंगे और जिसका वैल्यू फोर्स का ज्यादा होगा उसका फोर्स ज्यादा होगा। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, मान लीजिए m1 दे रखा है। m1 इज 5 kg, जैसे 5 किलोग्राम की बॉडी, एक्सीलरेशन उसका है क्या, 2 मीटर पर सेकंड स्पेस, 2 मीटर पर सेकंड स्पेस एक्सीलरेट कर रही है। और एक बॉडी m2 है, उसका मास है 4 kg और उसका एक्सीलरेशन कितना है
उसका एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका सॉरी A1 कितना है, ये है 2 kg और ये है 5, दिस इज 2 kg, दिस इज 5, ठीक है। सो वी आर हैविंग टू बॉडीज of different masses and their value of acceleration is also different. So in this method we have to find the greater force. So how to find greater force? जब आपको दोनों ही क्वांटिटी अलग अलग दे रखी हो, only solution is that you have to do the multiplication and find the value of the force. So F1 क्या होगा, M1 into A1, F2 क्या होगा, M2 into A2, M1 2 multiplied by 5 कितना आ गया 10 न्यूटन। F1 इक्वल टू 10 न्यूटन। M2 कितना है 4 multiplied by 2, इट विल बी 8 न्यूटन। F2 कितना आ गया 8 न्यूटन। सो F1 10 न्यूटन आ गया, F2 8 न्यूटन आ गया, तो मीन्स F1 इज ग्रेटर देन, it means F1 is greater than F2. So F1 is greater than F2. So force on the body of mass M1, which is having mass 2 kg and acceleration 5 meter per second square, that is having a greater force than the force on the body of mass 4 kg and acceleration will be 2 meter per second square. Clear? So this is the solution, that force on body 1 will be greater than the force on body 2. Come on to next question. Come on to question number 4. Question number 4 में क्या है, a bullet of 20 gram is horizontally fired with a horizontal velocity of 150 मीटर पर सेकंड। मीन्स 20 ग्राम की बुलेट है और उसको फायर किया गया 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 2 kg, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। तो क्या है, एक पिस्टल मेरे पास है, उस पिस्टल को फायर किया गया, जिसका पिस्टल का मास कितना है 2 किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम की पिस्टल है और उसके अंदर 20 ग्राम की बुलेट है। जब फायर किया गया तो 20 ग्राम की बुलेट को फायर किया गया, उसकी वेलोसिटी थी 150 मीटर पर सेकंड। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है, मास ऑफ गन means capital M will be how much 2 kg, 2 किलोग्राम दे रखा है, 2 किलोग्राम की बंदूक है, ठीक है। मास ऑफ बुलेट स्मॉल m, it is it is how much, it is 2 ग्राम। कितना दिया हुआ है 20 ग्राम दिया, 20 ग्राम। इट मीन्स 20/1000, दैट इज 0.02 kg। तो बुलेट का मास कितना हो गया 0.02 kg इज द मास ऑफ बुलेट। और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विल बी हाउ मच 150 मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ पे क्या है कि इनिशियली गन का मास जो भी है वही रहेगा, जो बुलेट का मास है वो भी वही रहेगा, और इनिशियली फायर करने से पहले गन भी रेस्ट पर है और बुलेट भी रेस्ट पर है। जैसे ही फायर हुआ तो गन फायर की गई, गन फायर होते ही बुलेट की वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, जो दे रखी है कितनी है 150 मीटर पर सेकंड है, और हमें रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन निकालनी है, क्योंकि जब वो रेस्ट पे थी बुलेट की वेलोसिटी भी 0 है
और गन की वेलोसिटी भी 0 है, क्योंकि गन को फायर ही नहीं किया गया। जब गन को फायर नहीं किया गया, इट मीन्स गन इज एट रेस्ट एंड ऑल्सो द बुलेट इज एट रेस्ट, इट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन एंड द बुलेट विल बी 0. So this is your final velocity. And initial velocity क्या है? Initial velocity of the bullet and gun is 0. और हमें क्या है? हमारे पास क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ हमें गन निकालनी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन दैट इज Vg, और ये क्या था? ये है Vb, ठीक है। सो नाउ तो यहां पे क्या लगाएंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या होता है ये? मास ऑफ बुलेट इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन, मास ऑफ गन इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन. इट मीन्स इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड द गन will be equal to the final momentum of the bullet and the gun. mb initial mass क्या है बुलेट का? कितना है? m. u is 0 प्लस गन का मास तो m इंटू 0 इज इक्वल टू mb. mb कितना है? m है. m इंटू vb, vb कितना है? 150 है, प्लस गन का मास कितना है? गन का मास है m, इट इज Vg. सो हेयर वी कैन सी दैट m इंटू 0 विल बी 0, here also 0 इज इक्वल टू m कितना है? 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 150 प्लस कैपिटल M कितना है? 2 kg इंटू Vg. So we can write twice of Vg will be equal to minus, कितना आ जाएगा? 150 दूनी 300, इट मीन्स 3 आ जाएगा, 3.00 आ जाएगा, ठीक है। सो Vg will be equal to minus 1.5 meter per second. It means recoil velocity of the gun is equal to 1.5 meter per second. So this is the recoil velocity of gun, and minus sign indicates that the direction of the velocity of the gun is just in a direction opposite to the velocity of the bullet. It means जिस डायरेक्शन में बुलेट फायर की गई उससे अपोजिट डायरेक्शन में गन की वेलोसिटी है, और वो कितनी है? वो अगर हम देखेंगे तो बुलेट की वेलोसिटी के मुकाबले 100 गुना है। तो बुलेट कितनी है? इससे 100 गुना है. हाउ मच? 100 टाइम्स. सो द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 100 टाइम्स. वी कैन से द वेलोसिटी ऑफ द गन इज 1/100 टाइम्स ऑफ द दिस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. कोई डाउट इसमें किसी को? आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5.
ए बॉय ऑफ 40 kg जंप्स विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ड। मतलब एक लड़का है जिसका मास 40 किलोग्राम है और वो एक गाड़ी के ऊपर कूदता है जो कि स्टेशनरी है, जो कि रेस्ट पे है, और उस गाड़ी के ऊपर कूदता है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से हॉरिजॉन्टली। और उस गाड़ी के व्हील कौन से हैं? फ्रिक्शनलेस है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है। सो द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg. So what is his velocity as the cart starts moving? So assuming that there is no external unbalanced force working in horizontal direction. ठीक है, तो क्या करेंगे? अब देखिए, y का मास दे रखा है, गाड़ी का मास भी दे रखा है, और y की वेलोसिटी भी दे रखी है जिससे वो कूदता है गाड़ी के ऊपर। तो कितनी है? 5 मीटर। तो अब देखिए, जब भी कोई मान लो लड़का है, वो लड़का जब गाड़ी के ऊपर कूदा, मान लो एक रिक्शा खड़ी है, एक लड़का कितना है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग करके वो रिक्शा पे कूदता है, और रिक्शा के व्हील्स कैसे हैं? फ्रिक्शनलेस है। इट मीन्स जब भी कोई बॉडी, मूविंग बॉडी उसके ऊपर जंप करेगी, सो इट विल सडनली स्टार्ट मूविंग। इट मीन्स जिस वेलोसिटी से वो बंदा, लड़का कूदेगा उस रिक्शा पे, रिक्शा भी उसी वेलोसिटी से मूव करेगी। इट मीन्स व्हेन द बॉय जंप्स ऑन द कार्ट, it suddenly starts moving and it will both will become a combined body. तो हमें क्या निकालना है? combined body का velocity निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? combined body की velocity हमें निकालनी है। ठीक है, let us so क्या दे रखा है? mass of the boy, it's how much? 40 kg, 40 किलो का लड़का है, और velocity of boy is 10 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मूव कर रहा है, और इस स्पीड से मूव करते हुए वो एक स्टेशनरी कार्ट के ऊपर जंप कर जाता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही वो उस स्टेशनरी कार्ट के ऊपर जंप करेगा, और कार्ट क्या है? कार्ट के व्हील्स है फ्रिक्शनलेस, मीन्स कोई फ्रिक्शन नहीं है, मीन्स देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हील्स ऑफ द कार्ट एंड द रोड। तो जैसे ही लड़का 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कूदेगा उस कार्ट के ऊपर, तो कार्ट सडनली स्टार्ट्स मूविंग। इट मीन्स जिस वेलोसिटी से लड़का चलेगा उसी वेलोसिटी से गाड़ी चलेगी। सो मास ऑफ द कार्ट कितना है? 3 kg, 3 किलो की गाड़ी है, और हमें क्या निकालना है? निकालना क्या हमें? यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मीन्स हमें वो वेलोसिटी निकालनी है व्हेन कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। तो क्या पूछ रहे हैं वो, कि वो वेलोसिटी कितनी होगी जब कार्ट चलना स्टार्ट कर देगी। तो इसका मीनिंग क्या है? जैसे ही बॉय 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता हुआ आएगा, और वो 40 किलोग्राम का लड़का उस 3 किलोग्राम की कार्ट के ऊपर जंप करेगा, तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार्ट के जो व्हील है वो फ्रिक्शनलेस हैं। सो ड्यू टू नो फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ द कार्ट एंड द रोड, द मोमेंट द बॉय जंप्स ओवर द स्टेशनरी कार्ट, it starts moving suddenly. So it will start moving with the velocity with which the boy is moving. लेकिन उस केस में बॉडी एक कंबाइंड बन गई है, तो लेट अस अज्यूम द वेलोसिटी विद विच द कंबाइंड बॉडी विल स्टार्ट मूविंग मीन्स बॉय एंड द कार्ट विल बी ए
will become a combined body. So means let us suppose v is the velocity. ठीक, तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट लगेगा वही, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सो क्या होगा, मास ऑफ बॉय मीन्स मास ऑफ बॉय इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉय प्लस मास ऑफ कार्ट, this is mb means mass of boy, velocity of the boy, this is mass of cart into velocity of the cart. ठीक, इज इक्वल टू मास, अब देखिए मास ऑफ बॉय moving with velocity v plus mass of cart moving with velocity v. It means it will be given by mb plus mc, because when the boy suddenly jumps over the stationary cart, the both will become a combined body. It means अब लड़का और गाड़ी दोनों इकट्ठे ही दौड़ रहे हैं. It means वो एक combined body बन जाएगी. तो उसकी वेलोसिटी मैंने v मान ली है, हमें ये v निकालना है. So mb vb plus mc mass of cart, as the cart is stationary initially, so its velocity will be zero. mb vb, mass of boy 40 kg multiply by velocity of the boy 10 plus 0 will be equal to mass of boy is 40, mass of cart is 3 into v. Here we can write it is 400 is equal to 43 into v. So v will be equal to 400 by 43. तो कितना आ गया, v will be equal to कितना आ जाएगा, 40 से करेंगे तो कितने जाएगा, 8 9 9 से 27 36 2 38 10 9 पे जाएगा. 9 पे का कितना आ जाएगा, 9 से 27 9 से 36 और 2 38 मीन्स 387. तो कितना बचेगा, 13 बचेगा 130. इट मीन्स 3 3 और 12, तो कितना जाएगा 9.3. तो 9.3 मीटर पर सेकंड इज द combined velocity, or you can say is the velocity when the cart starts moving. Means जब कार्ट ने चलना स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी 9.3 मीटर पर सेकंड होगी. क्या होगी, 9.3 मीटर पर सेकंड होगी. ठीक है, फोर्टी इंटू 10 so it is 9.3. Clear? So means this is the velocity with which the cart starts moving when the boy jumps on the cart. Means combined body starts with moving with this velocity 9.3 meter. ठीक है, come on next question. Let us move to question number 6. Question number 6. So हमें एक VT ग्राफ दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 50 ग्राम, मीन्स एक 50 ग्राम की ऑब्जेक्ट है, उसका हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, ग्राफ को ऑब्जर्वली केयरफुली देखना है और ग्राफ से हमें क्या क्या निकालना है, फोर्स निकालना है फॉर 0 to 3 सेकंड के लिए, और फोर्स निकालना है 6-10 के लिए. और पहले ग्राफ बनाते हैं. ग्राफ क्या है, वीटी ग्राफ. ठीक है, 0 3 6 10.
तो गिवन क्या है, ये ग्राफ दिया हुआ है 0, 3, 6, 10 और ये कितना दिया हुआ है 120. It is 1. So it is velocity. It is in meter per second. This is time in second. ठीक है. So वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है. So VT graph for an object of mass how much 50 gram. So mass is given to us कितना है 50 gram. It means 50 by 1000 kg. It means 0.05 kg. तो मास क्या है 0.05 kg. मीन्स एक ऑब्जेक्ट है इसका मास 0.05 kg हमें दिया हुआ है और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है. हमें क्या निकालना है कि कैलकुलेट द फोर्स. हमें क्या निकालना है, ए पार्ट है फोर्स निकालना है 0 से 3 सेकंड में कितना होगा और वही फोर्स निकालना है 0 से 6 से 10 कितना होगा, 6 से 10 कितना होगा. और क्या निकालना है, is there any time interval in which no force acts on the object? Justify the answer. तो सी पार्ट क्या है, ये भी बताना है कि क्या कोई ऐसा इंटरवल है जहां पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, वो भी बताना है. ठीक है. सो ये ग्राफ दिया हुआ है. वी नो दैट दिस स्लोप इज पॉजिटिव स्लोप और यू कैन से इंक्रीजिंग स्लोप, और ये स्लोप है डिक्रीजिंग स्लोप और यू कैन से नेगेटिव स्लोप. ठीक. तो यहां से लेकर यहां तक जो स्लोप है ये इंक्रीजिंग है. इट मींस दिस इंक्रीजिंग स्लोप, दिस स्लोप will give you the value of acceleration which will be positive for this particular slope, and this slope is decreasing slope, or you can say this slope will give you the value of negative. Value of action will be negative. It means this will give you retardation. So हमें क्या निकालना है, पहले पार्ट में निकालना है हमें फोर्स. सो F फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन. ठीक है. मास कितना है 0.05 ए. अब ए क्या होगा, हमें निकालना है 0 3 सेकंड के लिए. 0 से 3 के लिए जो स्लोप है वो मेरा इंक्रीजिंग है. इट मींस ए की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी. तो ए क्या होता है v माइनस यू. सो एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 u कितना है 0 है. एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड u कितना है 120 है. इट मीन्स इनटू v माइनस यू बाय टी. So 0.05 multiplied by v. V is 120 minus 0 divided by 3. So it is how much? 0.05 into 120 by 3. It is 40. तो 40 पंजे 200. It means ये कितना आ गया 2 न्यूटन आ गया. So force will be 2 न्यूटन for the interval 0 to 3 सेकेंड. सो 0 से 3 सेकेंड के लिए जो फोर्स होगा वो कितना है, वो हमारा 2 न्यूटन है. सो द वैल्यू ऑफ फोर्स विच विल एग्जिस्ट फॉर द इंटरवल 0 to 3 सेकेंड विल बी 2 न्यूटन. ठीक है. बी पार्ट की बात करते हैं. बी पार्ट में यहां कर रहा हूं. अब ये स्लोप है यहां पर एट टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड. मुझे क्या निकालना है 6 से 10 के लिए. इट मीन 6 सेकेंड क्या है यहां पर इनिशियल टाइम है. 6 सेकेंड विल बी u कितना है 120 मीटर पर सेकेंड. एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड
v कितना है 0। देखिए 6 से 10 के लिए निकालना है तो 6 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है मेरी 120 है, वो लिख दी इनिशियल वेलोसिटी होगी। 10 सेकंड पे फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 है। सो फोर्स विल बी m इंटू ए, इट मीन्स मास इंटू v माइनस यू बाय टी। तो क्या बनेगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इज 0.05 v माइनस यू, इट मीन्स 0 माइनस 120 बाय 4, क्योंकि ये कितना सेकंड 4 सेकंड है। कितना बनेगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय माइनस 120 बाय 4, कितना आ गया 0.05 इंटू माइनस 30, इट विल बी हाउ मच, सो इट विल बी फोर्स विल बी इक्वल टू 30 पंजे 150, इट मीन्स 1.5, इट मीन्स फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस 1.5 न्यूटन। कितना आ गया फोर्स, कितना आ गया, द फोर्स अप्लाइड फॉर द इंटरवल 6 to 10 सेकेंड इज हाउ मच 1.5 न्यूटन। कितना आ गया माइनस का 1.5 न्यूटन, क्योंकि अब देखिए ये आपका स्लोप इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग स्लोप आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव देगा, तो इट मींस आपका फोर्स भी क्या आएगा पॉजिटिव फोर्स आएगा। ठीक है, इट मींस दिस फोर्स इज कॉल्ड एक्सीलरेटिंग फोर्स बिकॉज द फोर्स विल हेल्प द मास टू एक्सीलरेट, तो दिस फोर्स विल बी एक्सीलरेटिंग। तो एक्सीलरेटिंग फोर्स कितना आ गया 2 न्यूटन आ गया, और दिस डिक्रीजिंग स्लोप विल गिव यू द वैल्यू नेगेटिव, इट मींस नेगेटिव एक्सीलरेशन, दिस रिटार्डेशन, सो दिस फोर्स due to retardation will be retarding force, that's why it is negative, so negative force is retarding force, so now minus sign indicates that the force is retarding force। ठीक है, अब क्या करना है, सी पार्ट क्या था कि हमें ऐसा इंटरवल बताना है जहां पर कोई फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे सी पार्ट अगर देखते हैं t is equal to 3 सेकेंड एंड t is equal to 6 सेकेंड, तो t is equal to 3 पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी 120 है और फाइनल है वो भी 120 है, 3 पे भी 120 है, 6 पे 120 है। इसका मतलब a क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज 120 माइनस 120 डिवाइड बाय 3 सेकेंड विल बी 0। इफ एक्सेलरेशन विल बी 0 इट मीन्स फोर्स विल बी 0, इट मीन्स दिस इज द time interval where your force will not exist। So this force is your retarding force and this force is your accelerating force because this force is produced due to the acceleration and this force is produced due to retardation, so that's why negative sign indicates that this force is retarding force, it means the direction of this force applied will be opposite to the direction of the motion। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 7। so this is the question number 1 2 3 4 5 and 6, okay that's fine। now question number 7, question number 7 तो क्या होगा इसमें, from a rifle of mass 4 kg a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second, calculate the recoil velocity of the rifle। तो क्या है, एक राइफल दी हुई है इसका मास 4 किलोग्राम है, एक राइफल है आपके पास उसका मास 4 किलोग्राम है और बुलेट उसके अंदर जिसका मास 50 ग्राम है उसको आप फायर कर रहे हो एक वेलोसिटी के साथ जो कि वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स बुलेट का मास 50 ग्राम और बुलेट की वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड और राइफल का मास कितना है 4 kg एंड
फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल। तो ये तो बहुत बार कर चुके हैं हम। तो क्या गिवन है हमें, मास ऑफ राइफल, मास ऑफ राइफल कितना है 4 kg, 4 किलोग्राम की राइफल है, और मास ऑफ बुलेट कितना है 50 ग्राम है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है 35 मीटर पर सेकंड है। अब क्वेश्चन ये है कि इस वेलोसिटी ऑफ बुलेट को बच्चे क्या मान लेते हैं, इनिशियल मान लेते हैं, लेकिन जब तक आप राइफल को फायर नहीं करोगे तब तक राइफल की वेलोसिटी भी 0 है और बुलेट की वेलोसिटी भी 0 है, क्योंकि दोनों आपके स्टेशनरी हैं। इट मीन्स बोथ आर एट रेस्ट, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द राइफल एज वेल एज द बुलेट विल बी 0. So here we are applying the concept of momentum, law of conservation of linear momentum. According to that law, the initial momentum of the body will be equal to the final momentum of the body, or you can say that total momentum of the body will remain constant. So क्या दिया हुआ है, अब इनिशियली जब रेस्ट पे है, इनिशियली जब दोनों ही फायर नहीं किए गए तो वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी 0 होगी, 0 होगी, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल भी 0 होगी। राइफल की वेलोसिटी भी 0 है और बुलेट की वेलोसिटी भी 0 है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल। हमें क्या निकालना है, जिस वेलोसिटी से राइफल रिकॉइल करेगी वो वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर momentum. So we are applying here the concept of law of conservation of linear momentum. According to this law, the initial momentum क्या होगा, राइफल का momentum means mass of rifle into velocity of rifle plus mass of bullet into initial velocity of bullet, mass of rifle into initial velocity of rifle, mass of bullet into final velocity of bullet, mass of rifle into final velocity of rifle. MB कितना है, so MB is 50 gram, so it should be written as, तो क्या लिखेंगे 50 बटे में 1000, इट मीन 0.05 kg, ठीक है। सो 0.05 इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 0 और my कितना है 4 किलोग्राम की राइफल है इंटू 0 इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट क्या है 0.05 इंटू इनिशियल वेलोसिटी बुलेट क्या है 35 है। मास ऑफ राइफल कितना है 4 गुना में, ये हमें निकालना है। सो 0 इंटू समथिंग इज 0, दिस इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, इट मीन्स ये कितना आ जाएगा 35 इंटू 5 175, इट मीन्स 1.75 प्लस 4 वेलोसिटी ऑफ राइफल, तो क्या हो जाएगा माइनस 1.75 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ राइफल, and velocity of rifle will be equal to minus 1.75 by 4. It means velocity of rifle will be equal to how much, 4 4 जा 16, क्या जाएगा 4 4 जा 16 and 4 3 जा 12, so कितना आ गया 4 चौके 16, 1 बचा 15, 4 3 12, 5 हो गया 3 30, 4 सत्ते 28, फिर 20, 4 पंजे 20, से कितना आ गया वेलोसिटी ऑफ राइफल विल बी
माइनस 0.375 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ राइफल इज हाउ मच? इट विल बी माइनस का 0.4375 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो इसको हम क्या लिखेंगे? वी कैन राइट इट अप्रोक्सीमेटली। सो वी आर विल बी इक्वल टू माइनस 0.44 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया? 0.44 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ द राइफल। ठीक है, come on to next question. Come on to question number 8. Question number 8 क्या है? A stone of mass 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between stone and the ice? तो हमें क्या दिया हुआ है? एक स्टोन दिया हुआ है 1 किलोग्राम का। 1 किलोग्राम का स्टोन है जिसको फेंका गया 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया। एक स्टोन 1 kg का है, उसको हम 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहे हैं। और कहां फेंका हमने? झील के फ्रोजन सरफेस के अक्रॉस फेंका। मीन्स हमने ऐसे फेंका, जैसे हम कई बार ना देखा होगा आपने तालाब वगैरह में पानी देखते हैं तो हम कंकड़ फेंक देते हैं ऐसे करके, तो ऐसे फेंका। एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। सो कितना है? 1 किलोग्राम की का स्टोन है और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया। तो मीन्स इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, और क्या है उसका, जब वो रेस्ट पे आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है। और ए कितना है? ए हम निकाल लेंगे और डिस्टेंस भी दे रखा है। एंड देन यू विल फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन स्टोन एंड द। सो क्या गिवन है हमें? हमें गिवन है मास ऑफ स्टोन। मास ऑफ स्टोन इज हाउ मच? कितना है? 1 kg। 1 किलोग्राम का पत्थर है और इसकी वेलोसिटी जो है, और ये वेलोसिटी कौन सी है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन दैट इज यू। यू कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड। 20 है, कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड की इसकी वेलोसिटी है। और कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन एस विल बी इक्वल टू 50 मीटर। 50 मीटर ट्रेवल करने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। मींस डिस्टेंस ट्रेवल्ड 50 मीटर, इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। इट मींस द स्टोन विल कम टू रेस्ट। तो जब वो रेस्ट पे आ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन क्या हो जाएगा? वी कितना हो जाएगा? 0। तो स्टोन का मास 1 kg है। उस 1 kg के स्टोन को हमने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका। कहां पे? एक जमी हुई लेक के ऊपरले स्पेस के अक्रॉस फेंका हमने। सो जब उसको फेंक रहे हैं किससे? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहे हैं। और मास कितना है? 1 kg। 1 किलोग्राम मास ऑफ स्टोन को हम 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहे हैं। और ऐसा होने पर, उस स्पीड से फेंके जाने पर वो 50 मीटर तक ट्रेवल करने के बाद रेस्ट पे आ जाता है। मींस उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। सो हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन स्टोन एंड द आइस? हमें निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमें निकालना है।
फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन स्टोन एंड आइस। ठीक है, तो मीन्स हमें एफ निकालना है। ठीक है, तो एफ निकालने के लिए मेरे पास मास तो है लेकिन ए नहीं है, तो ए पहले निकालेंगे। ए कैसे निकलेगा? मुझे इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, यू हमें दे दिया गया है, फाइनल वेलोसिटी भी है, एस भी है मेरे पास, और मैं ए निकाल लूंगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके, थर्ड इक्वेशन। बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। तो क्या होती है? वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वेयर विल बी 0 का स्क्वेयर, यू कितना है 20 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 50, कितना आ गया 0 माइनस 400 विल बी इक्वल टू 100a, कितना आ गया? सो 100a विल बी इक्वल टू माइनस 400 and a will be equal to how much? minus 400 divided by 100, so a will be equal to minus 4 meter per second square। तो a कितना आ गया? so a will be minus के 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आ गया। It means this is the value of acceleration and here acceleration is negative, or we can say that this is the value of retardation। It means यहाँ पर जो स्पीड है वो कम हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हो जब मैंने उस स्टोन को फेंका उसकी स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकंड है, और जब तक वो 50 मीटर तक ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 होगी, क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? स्टोन का मास दिया हुआ है और स्टोन को 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से फेंका गया, और उस स्पीड से फेंके जाने के बाद उसने 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, उसके बाद वो रेस्ट पे आ गया। इट मींस उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या 0 है। इट मींस द वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। सो व्हेन द वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, इट मींस एक्सीलरेशन विल बी नेगेटिव एंड दैट एक्सीलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। सो दिस इज योर रिटार्डेशन। इट इज -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक वैल्यू कितनी आ गई? -4 आ गई। और हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। F विल बी इक्वल टू मास इंटू A। मास कितना है? मास है 1 kg। 1 इंटू -4, इट मीन्स फोर्स विल बी इक्वल टू -4 न्यूटन। कितना आ गया? फोर्स हमारा आ गया माइनस के 4 न्यूटन हमारा फोर्स आ गया। इसका मतलब 4 न्यूटन का फोर्स उस स्टोन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तब जाके वो स्टोन आपका रेस्ट पे आएगा। इट मींस वो स्टोन जब 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से फेंका गया, अगर उस स्टोन पे एक अपोजिट फोर्स मींस फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन आइस एंड द स्टोन विल एग्जिस्ट देयर एंड विल ओकर देयर, दैट वैल्यू विल बी शुड बी 4 न्यूटन। मींस 4 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे लगना चाहिए, जिससे कि वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ चलने वाला स्टोन वो कम होते होते वो रेस्ट पे आ जाए, 0 हो जाए। ठीक, सो दिस विल बी योर व्हाट? दिस इज योर frictional force. This is your frictional force. So that's why negative value means it is your frictional force, because frictional force is the force which always act in a direction opposite to the direction of the motion of the body. तो बॉडी क्या है यहाँ? स्टोन को फेंका गया किस स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इट मीन्स जिस स्पीड से वो फेंका गया और जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम एक फोर्स लगाएंगे, जिससे कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होते होते वो रेस्ट पे आ जाएगी और 0 हो जाएगी। इट मीन्स दैट फोर्स इज योर रिटार्डिंग फोर्स, और यू कैन से फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स एंड द रिटार्डिंग फोर्स आर द सेम थिंग। बस इतना ही फर्क है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स और रिटार्डिंग फोर्स की डायरेक्शन सेम रहेगी, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस होता है, लेकिन रिटार्डिंग फोर्स क्या है? वो व्हीकल पे लगता है। मीन्स कोई चीज चल रही है वो अपने आप कैसे रुक रही है। ठीक है, या हम ब्रेक लगा रहे हैं तो ब्रेक लगाने में क्या हो रहा है? ब्रेक लगाने में क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है, क्योंकि ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? जो व्हील्स हैं, व्हील्स रुकेंगे। इट मीन्स व्हील्स ट्राई टू गेट बैक, बट
जनरली वो आगे जा रहे हैं. सो दिस इज द वे इन विच वी विल सोल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. सो आप देख सकते हैं कि मैंने हर क्वेश्चन में कैसे किया है. मैंने हर क्वेश्चन में पहले स्टेटमेंट को पढ़ा, आपको पढ़कर बताया. स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको मैंने ये भी बताया कि गिवन क्या क्या है, और मैंने फॉर्मेट भी ये फॉलो किया है कि गिवन क्या क्या क्वांटिटीज है, क्या क्या क्वांटिटी गिवन है. तो जब आप सारी क्वांटिटी गिवन लिख दोगे, उसके बाद आप प्रोसीड करोगे कि आपको निकालना क्या है. तो वो चीज निकालने के लिए आपको रिक्वायरमेंट किस चीज की है, फिर आप वो करोगे. फिर मीन्स दिस इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. पहले मैंने क्वांटिटी लिखी, फिर मुझे निकालना क्या है, फोर्स निकालना है. मेरे पास मास तो है, एक्सीलरेशन नहीं है. इट मींस फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एक्सीलरेशन. सो u मेरे पास है, v मेरे पास है, s मेरे पास है. सो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन. सो a निकाल लेंगे. a मेरा कितना है, -4 है. इट मींस दिस इज योर वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन. तो ये क्या है, रिटार्डेशन है. इट मींस स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है. सो a क्या है, -4 है, और अकॉर्डिंग टू दिस -4 the force will be negative. It means this is your frictional force. So frictional force will always having a negative magnitude. So this negative sign indicates that the direction of the frictional force is just opposite to the direction of the motion of the body, and here body is the stone. तो जिस डायरेक्शन में बॉडी को फेंका गया, उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है. ठीक है. सो इन दिस वे वी कैन से दैट दिस इज द परफेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, and in this way you have to follow, then it will be beneficial to you. So तब तक अपना ध्यान रखिए और इनको लेक्चर को देखते रहिए और ट्राई कीजिए मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स. तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच. अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए. थैंक यू.